कर्म वो नहीं देखता जो आप करते हो, आपके विचार भी, आपके उद्देश्य में भी पाप होता है, आपके विचार में भी पाप होता है। इसीलिए बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है। God doesn't consider sin as the sins committed in your action, but even the thoughts and motives and intents are sin before him. That's why the Bible says not even one is righteous. Okay, that's why God hates it when we stand before him in our filthy rags boasting. इसीलिए परमेश्वर को घृणा है, नफरत है इससे जब हम उसके सामने अपने फटे पुराने चित्रों में खड़े होकर घमंड करते हैं उन पर। Because we think we are very religious. क्योंकि हमें लगता है जी हम तो बड़े धार्मिक हैं। But God sees our filthy rags. लेकिन परमेश्वर वो फटे पुराने चित्र देखता है उसमें। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? That's God's standard, that's God's definition. That does not, एक जो धर्म में आदमियों के अरे ये क्या बात है, हम नहीं मानते, मत मानो, मगर ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। This is God's standard, ये उसका स्तर है। क्योंकि पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो परमेश्वर मिलावट को पसंद, Because when you read in the Old Testament, God doesn't like mixing of clothes, mixing of आप things. किसी के घर खाने पे गए, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हमने मटर पनीर आपके लिए बनाया है, You went to someone's house and they said we prepared a very good dish for you. बस हमारी घर में एक बिल्ली है, There's a cat in our house. पूरा सही है मटर पनीर, Everything is good. बस उन्हें चढ़ के छोटी सी पॉटी कर दी इसमें, Just that the cat climbed the vessel and खाओगे आप? did a little potty in there. नो, No. Will you eat? No. व्हाई? Why? क्यों? Because little bit of sin क्योंकि थोड़ा सा पाप has destroyed it. पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। The Lord doesn't accept it. परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता है। Then तो फिर सवाल ये आता है, फिर तो असंभव है। Then the question arises, then it is impossible. तो परमेश्वर कह रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हो, God is saying absolutely right. तुम्हारे लिए असंभव है, It is impossible for you. इसीलिए मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, That is why I will come as a man. इसीलिए मैं एक कुमारी से जन्म लूंगा, I will be born of a virgin. मैं अपना लहू बहाऊंगा, I will shed my blood. और जो धार्मिकता तुम कभी कर्मों से नहीं पा सकते, वो धार्मिकता में सेत मेत में तुम्हें विश्वास से दूंगा। And that righteousness which you can never earn with your works, I will give it to you for free. इसीलिए ये क्रिश्चियनिटी और ईसाईयत के बारे में नहीं है भैया। That's why this is not about Christianity and religion. आप समझ रहे हो इस बात को? Do you हम understand? जब तक आप धर्म के बंधन से नहीं छूटोगे Till you don't तो get कहोगे free. हमारा धर्म उस धर्म से बढ़िया है, Till you don't वो get कहेगा free. मेरा धर्म तेरे धर्म से पुराना है, वो कहेगा मेरा धर्म तेरे धर्म से ज्यादा पुराना है, यही लड़ाइयां चलती रहेंगी। You will keep saying my religion is better, another will say my religion is older, and there'll always be fights. Whom the Son has set free is free indeed. जिसे पुत्र ने आजाद किया वो निश्चय आजाद है। Even धर्म के बंधन से। Even from religious bondage. Amen. And you have no idea how, what the original translation. ठीक है बोल दूं? Well, that's what the Bible says in the Hebrews. That's how it is. मूल इब्रानी भाषा में क्या लिखा है आपको It's कोई not अंदाजा even नहीं। filthy rags. वो फटे पुराने चित्रे नहीं है। It's menstrual cloth वो जो that women used to use during their periods. जो महिलाएं पीरियड्स में कपड़े इस्तेमाल किया करती थी उसकी बात हो रही है। That's the word. ये वचन वहां पे इस्तेमाल किया। That's how God sees our righteous works. परमेश्वर हमारी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के कामों को ऐसा देखता है। Put that in the Passion Translation because that translation catches the real meaning. पैशन ट्रांसलेशन में देखिए वो असली मतलब को दिखाते हैं। We have all become contaminated with sin, हम सब पाप से दूषित हो गए। right? We got contaminated with sin. पाप से दूषित हो गए। And you see our self-righteousness
And you see, he's saying, God, you see, परमेश्वर आप, हमारी धार्मिकता, you see our righteousness as nothing better than a menstrual rag. और परमेश्वर आप हमारी धार्मिकता को पीरियड्स में इस्तेमाल किए कपड़े से बढ़कर नहीं देखते. Because in the Old Testament, a woman that was in her periods, it was considered unclean. क्योंकि पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था में एक स्त्री जिसको पीरियड्स हो रहे हैं उसको अशुद्ध माना जाता था. So if the blood would touch her clothes, the clothes would be unclean. अगर लहू उसके कपड़ों को छू लेता तो कपड़े अशुद्ध माने जाते. तो जितने भी वो कपड़े चेंज करेगी, क्योंकि अशुद्धता अंदर से आ रही है, बाहर के कपड़े उसको नहीं चेंज कर सकते. यही धर्म हमें सिखा रहा है, मगर परमेश्वर कह रहा है तुम जितने भी कर्म कर लो, अंदर जब पाप का स्वभाव है तो वो वैसे ही अनक्लीन रहेगा, अशुद्ध रहेगा. No matter how many sets of clothes she changes, because the uncleanness is coming from within. That's what religion is teaching us. No matter how many clothes you change, it will keep on continue to make you unclean. That's why Jesus loved sinners, इसीलिए tax collectors, prostitutes. यीशु को प्यार था पापियों से, चुंगी लेने वालों से, वैश्याओं He से. said, I'm a friend of sinners. उसने कहा मैं तो पापियों का दोस्त But हूं. to the self-righteous Pharisees, लेकिन उन घमंडी खुद की कमाई हुई धार्मिकता पर चलने वाले फरीसियों के साथ. Jesus said, you children of devil. यीशु कहता है शैतान के बच्चों. Why didn't Jesus say that to prostitutes and tax collectors? यीशु ने ऐसा वैश्याओं से, चुंगी लेने वालों से क्यों नहीं बोला? Why didn't he say them, you children of devil? उनसे क्यों नहीं कहा शैतान के बच्चों? Why did he say that to religious leaders? लेकिन धार्मिक गुरुओं से, धार्मिक Because लीडर of से their क्यों बोला? hypocrisy. उनके ढोंग के कारण. Because they used to show they are perfect. क्योंकि वो ये दिखाते थे कि वो तो सिद्ध है. आज बहुत धर्मगुरु दिखाते हैं हम बहुत ही पवित्र हैं. केवल एक पवित्र है, उसका नाम यीशु मसीह है. There are many religious gurus today that portray that they are और perfect. अब There's only one उसने perfect अपनी Jesus. पवित्रता, अपनी धार्मिकता हमें सेत मेत में एक दान के रूप में दे दी है. Now he has given to us his holiness, his purity as a free gift. Amen. Do you know what should be your greatest fear? आपको पता है आपका सबसे बड़ा भय क्या होना चाहिए? Come on, ask your neighbor. What should be पूछो the अपने greatest? पड़ोसी को सबसे बड़ा डर क्या होना चाहिए हमारा? You know what is the greatest fear? पता है क्या? We think when we'll stand before God, हमें लगता है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे He will reject us based on our works. तो हमारे कामों के कारण वो हमें ठुकरा देगा. Your biggest fear should be आपका सबसे बड़ा डर when ये you होना चाहिए, appear before Him, जब आप उसके सामने खड़े होते हो you should not be found with your own righteousness. तो आप अपनी खुद की धार्मिकता जो कमाई हुई है उसके साथ ना पाए जाओ. That should be your greatest fear. ये आपका सबसे बड़ा Because डर होना guess चाहिए. what? पता है क्या? You will be kicked out in the very same manner as this guy was kicked out of the banqueting feast. क्योंकि ठीक जैसे इस इंसान को शादी के भोज से भगा दिया गया, आपको भी वैसे ही वहां से भगा दिया जाएगा. Do you know what is Apostle Paul's prayer? आपको पता है पॉल उस की क्या The man प्रार्थना है? who wrote 2/3 of the New Testament. वो इंसान जिसने 2/3 नया नियम लिखा है. Are you ready? तैयार हो? All right. Philippians 3:9. फिलिपियो 3:9. And be found in him, not having my own righteousness which is from the law, not having. Paul says, when I am found in him, I should not be found with my own righteousness. पौलुस कह रहा है और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के साथ ना पाया जाऊं जब मैं परमेश्वर के सामने. ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने 2/3 बाइबल लिखी. ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को स्थापित किया. वो बोस्ट नहीं कर रहा, वो घमंड नहीं कर रहा. देखो मैंने 2/3 बाइबल लिखी है.
वो कह रहा है जब मैं उसमें पाया जाऊं तो अपनी धार्मिकता में ना पाया जाऊं तो अपनी धार्मिकता में ना पाया जाऊं. This is the man who has written 2/3 of the New Testament. God used him to establish the New Covenant Church, and he says, when I stand before him, may I not be found in my own righteousness. Which is from the law. जो व्यवस्था से है, But that which is through faith in Christ. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है. Hallelujah. But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है. Hallelujah. Otherwise, we'll be wearing filthy rags before God. नहीं तो हम परमेश्वर के सामने फटे पुराने चिथड़े पहनकर खड़े होंगे. अगर इंसान कर्म से ही मुक्ति पा सकता, इंसान कर्म से ही उद्धार पा सकता, तो फिर एक उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी. If mankind could be saved by works, if mankind could receive salvation by their own effort, then there was no need of a savior. Amen. Not the righteousness which comes from the law. वो धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था से आती है. अब ठीक है, आगे चलते हैं, मजा आएगा. ठीक है, ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े क्या हैं? What are these clothes? तैयार हैं आप? जो कपड़े अब हमने पहने हैं, The clothes that we are wearing now. you are not wearing something, you are wearing somebody. आप किसी वस्तु को नहीं पहने हो, अब आप एक व्यक्ति को पहने हो. Amen. I said you are not wearing something, you are wearing somebody. मैंने कहा आपने कोई वस्तु नहीं पहनी, आपने किसी एक व्यक्ति को पहन लिया And है. if you are wearing somebody, और अगर आपने एक व्यक्ति को पहन then लिया, that means whenever people in the spirit realm, the spirits, इसका the मतलब beings, दुनिया when they look at you, they don't look at you, they look at somebody. जब आत्मिक दुनिया में जितने प्राणी हैं, जब वो आपकी ओर देखते हैं तो वो आपको नहीं पाते, वो किसी व्यक्ति को पाते हैं. जब वो आपको देखते हैं तो All right. Galatians 3:27. Let's see from the New Living Translation. गलातियों 3 उसका 27. Amen. And all who have been united with Christ. How many here have been united with Christ? और जितने मसीह के साथ जुड़ गए, यहाँ पर कितने हैं जितने मसीह के साथ जुड़े हैं? कितने मसीह के साथ जुड़े हैं? हाँ, आपका शरीर जुड़ा है आपके सर से? Is your या head कोई ऐसा तो नहीं सर घर पे छोड़कर आया है? is your head connected to your body? Is there anyone who's left their head at home? The Bible says we are the body of Christ. बाइबल कहती है हम मसीह की देह He हैं. is the head. वो सर है, We are the body. हम देह हैं. We have become one. हम एक हो चुके हैं. Okay? अगर हम एक हो चुके हैं, If we are one, तो बाइबल कह रही है और बाइबल से- तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है. and all who have been united with Christ in baptism have put on Hallelujah. Christ. Amen. We are wearing the new garment that we have is Jesus himself. जो नए वस्त्र हमें मिले हैं वो स्वयं यीशु मसीह है. सो पिता जब शादी में देखता है, कहता है my son, 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 my son. When the father sees at the wedding, he says, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा. There is one. अरे एक है, He doesn't look like my son. ये मेरे बेटे जैसा Who नहीं are दिखता. you? तुम कौन हो? I never knew you. मैं तुम्हें कभी नहीं Get जानता out था. from here. निकलो यहाँ से, निकलो. The feast is only for my son. ये भोज केवल मेरे बेटों के लिए है. Hallelujah. Hallelujah. मेरा घर केवल मेरे बेटों के लिए है. My house is only for my children. Hallelujah.
You have to understand that the Father only receives the Son. आपको समझ लेना है कि पिता केवल पुत्र को ग्रहण करता But है He loves you. और वो आपसे प्यार करता है, But He can only receive the Son. लेकिन केवल पुत्र को ग्रहण कर But सकता He है। loves you. पर वो आपसे प्यार करता है, But He only receives the Son. लेकिन वो सिर्फ पुत्र But को He ग्रहण loves करता है। you. पर वो आपसे प्यार करता है, So what did He do? तो क्या करोगे? He put you in the Son. उसने आपको ही पुत्र में डाल दिया। He made you one with His Son. उसने आपको अपने बेटे के साथ एक कर दिया। Hallelujah. That's the mystery. ये रहस्य है, That's the mystery. ये रहस्य है। Can you put Colossians chapter 3 verses 1? कोलोस्यों 3 उसका 1। Okay. Hallelujah. If then you were raised with Christ. What? You were raised with Christ? अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए, We were raised with Christ? क्या हम जिलाए गए उसके साथ? We were raised with Christ? हम जिलाए जा चुके हैं उसके Are साथ? you sure? पक्का? But so many people are waiting for the resurrection of their body, but your spirit has already been raised with Christ. पर कितने लोग अपने शरीर के जिला जाने का वेट कर रहे हैं, लेकिन You आपका आत्मा मसीह के साथ जिला जाए। were raised with Christ. आप मसीह के साथ जिलाए जा चुके हो पहले से। Hallelujah. You were raised with Christ. मसीह के साथ जिलाए Seek गए। those things which are above. जो स्वर्गीय वस्तु है उनकी खोज करो, Where Christ is. जहां मसीह है। Where is Christ? मसीह कहाँ है? At the right hand of? Where is Christ? पिता के दाहिने हाथ। कहाँ है मसीह? And पिता you के were? दाहिने- और आप You were raised with Him. आप उसके साथ उठाए गए। Where is Christ? मसीह कहाँ है? पिता And के you दाहिने were? हाथ। और आप Raised with उसके Him. साथ उठाए गए। आगे. Set your mind on things above and not on the things of the earth. You are heavenly beings now. स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की नहीं। आप स्वर्गीय लोग हो। Verse 3 is where for you, क्योंकि तुम मर गए, for you died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि Hallelujah. तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Oh, if my life is hidden अगर मेरी जिंदगी छुपी हुई है with Christ, मसीह के साथ, my life is मेरी जिंदगी Hidden. छिपी हुई है with Christ मसीह के साथ in God. परमेश्वर के अंदर, तो अब कौन सा जादू टोना काम करेगा? then what witchcraft can now affect me? कोई जादू टोना इतना पावरफुल नहीं जो परमेश्वर को भेद कर, मसीह को भेद कर, तब जाकर मुझको छू सके, तब जाके आपको छू सके। No witchcraft is powerful enough that it will penetrate through God, penetrate through Christ and then touch me. Oh, hallelujah. जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे आदम की आंखें खुल गई और तब उसने रियलाइज किया कि मैं नंगा हूं, वैसे ही अब आपकी आत्मिक आंखों को खुलना है और आपको जानना है कि अब हम मसीह के द्वारा ढांपे गए हैं। Christ in me, Christ upon me, Christ beneath me, Christ around me, Christ in my front, Christ in my rear. Oh, He has surrounded me from every direction. As Adam's eyes were opened and he realized he was naked, your eyes have to open and you have to realize you're surrounded by Christ. मसीह मेरे बाहर, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे पीछे, मेरे चारों ओर उसने मुझे घेर लिया है। That's what the gospel is. ये सुसमाचार है। See, let me say it again. The Father पिता loves you, आपसे प्यार करता है, but He only accepts लेकिन वो केवल His Son. अपने पुत्र को ग्रहण करता है।
So the gospel was सुसमाचार ये था God's idea परमेश्वर का जो to आइडिया make था humanity मनुष्य जाति को one with his son. अपने बेटे के साथ एक कर देना. So अंत में जब न्याय होगा, At the end, when it's the day of judgment, the question is सवाल ये है not what you have done. कि आपने क्या The किया वो question नहीं. is whether I am found in him or whether I am not found in him. सवाल ये नहीं है आपने क्या किया क्या नहीं. सवाल ये उठता है कि क्या आप उसमें पाए जाते हैं या उसमें पाए नहीं जाते हैं. समझ रहे हैं आप? एक फरीसी जिसने जिंदगी भर उपवास करा, जिंदगी भर व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करी और वो अंत में नाश हो गया. और एक चोर जिसने जिंदगी भर चोरी करी, व्यभिचार किया, मगर जब क्रूस पे था तो परमेश्वर के पुत्र की ओर देखा और कहा, आज प्रभु जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे तो मुझे मत भूलना. और यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा. A Pharisee that fasted all life long, obeyed all the commandments of the law, at the end perished, but a sinner on the cross, a thief on the cross, when he recognized, said, Lord, when you enter your kingdom, do not forget about me. Jesus said, you'll enter heaven today. So my confidence is not in my works. तो मेरा भरोसा, मेरा साहस अपने खुद के कामों My में नहीं है. confidence is in his finished work. मेरा साहस, मेरा भरोसा उसके खत्म हो चुके काम पर है. Amen. Hallelujah. Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं हम. Let's see this in the amplified classic version. Amplified क्लास पे देखते हैं. For as many of you, not here the language that Bible says, not some of you, not few of you, as many as of you. यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल देखिए. यहाँ पर कुछ लोग नहीं हैं, तुम में से थोड़े लोग नहीं, पर जितनों ने. Okay? कई लोग सिखाते हैं जितने आप मसीह में उसमें से थोड़े से परमेश्वर ग्रहण करेगा. Some people teach all of you who are in Christ, out of you some God will accept. That's the gospel which is no gospel at all. ये तो वो समाचार है जो सुसमाचार है ही नहीं. That's the gospel that reveals the righteousness of man. ये तो वो समाचार है जो मनुष्य की धार्मिकता को दिखाने But की the कोशिश करता है. gospel which is the true gospel, the Bible says in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. लेकिन जो असली सुसमाचार है, जो सच्चा सुसमाचार है, वो है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से विश्वास तक. For as many as of you were baptized into Christ. Now hear this. ये केवल पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा. जस्ट कोई पानी के नीचे डुबकी मारता है इसका मतलब ये नहीं वो बचाया जाएगा. कई ईसाई, बुरा मत मानना जब मैं ऐसा बोलता हूं, क्योंकि सच बोल रहा हूं. कई ईसाई धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से डुबकी मार लेते हैं. डुबकी मारना आपको नहीं बचाता. मसीह के ऊपर विश्वास आपको बचाता है. Many religious Christians, they take baptism as a ritual, as a tradition, but it is not that going under the water that saves you. It is the faith on Jesus that saves you. क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूं? क्योंकि चोर ने कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लिया. Why am I saying this? Because that thief did not take water baptism there. Now, बिल्कुल अलग टीचिंग है. मैं आपको ऑलरेडी टीचिंग. इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं कि बपतिस्मा जरूरी नहीं? बहुत जरूरी है. पानी का बपतिस्मा, मेरे पीछे बोलो, पानी का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा है. ईसाई बनाने का कॉन्फर्मेशन नहीं है. ये बैप्टिज्म देकर ईसाई बना देता है. So the water baptism is a baptism of death. It's not a confirmation of Christianity or religion. It's a baptism of death. वो मृत्यु का बपतिस्मा. जब एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है इसका मतलब वो मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया. When a person goes under the water, that means they're declaring they अभी have क्लोसियन died में हमने buried क्या with पढ़ा? Christ. For we died. कोलोसी में लिखा था क्योंकि हम मर गए. अरे अगर मर गए If we died, तो फिर फ्यूनरल भी तो होगा. then there would be a funeral. तो बैप्टिज्म इज नथिंग बट द फ्यूनरल सर्विस ऑफ योर ओल्ड मैन.
बपतिस्मा और कुछ नहीं पर आपके पुराने मनुष्य का फ्यूनरल सर्विस है। The baptism is the funeral service of your old man. बपतिस्मा आपके पुराने मनुष्य का फ्यूनरल सर्विस है। Old habits, पुरानी आदतें, old nature. पुराना स्वभाव, That man died. वो मनुष्य मर गया। Okay? Now, the baptism of the Spirit is the baptism of life. आत्मा का बपतिस्मा जीवन का बपतिस्मा है। Okay? इसीलिए रीति रिवाज की तरह नहीं करना है, So we don't do it like सत्य को tradition. जानना है। Know the truth. ओके सो जब यहां पे बैप्टिज्म की बात करी है, वो बैप्टिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक इमर्सो से बैप्टिजो से आता है, जिसका मतलब होता है इमर्जन, यानी एक हो जाना। जब आप मसीह के साथ एक हो गए, उसकी बात कर रहा है यहां पे पौलुस। The word here, baptism, is the word baptizo, which is when you're immersed in देखिए, Christ, you're one with Him. वो बता भी रहा है इसमें, as many of you were baptized into Christ into a spiritual union. आप में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, एक आत्मिक एक हो जाना है वो। आत्मिक क्या हो जाना? हम क्या हो गए मसीह के साथ? What happened to us? We became one with Christ. क्या हो गए? और ये एक ऐसा जोड़ है, फेविकॉल से भी 10,000 करोड़ ज्यादा, And कोई नहीं तोड़ सकता अब इसे। this union is stronger than any other union. Nothing can आप break भी नहीं this. तोड़ सकते। Not even you. God will not put the preciousness of salvation into the carelessness of man's hand. परमेश्वर इतने कीमती उद्धार को संभालने की जिम्मेदारी मनुष्य के हाथ में नहीं सौंपता। हाँ, ये ऐसा है कि एक भिखारी है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अब मैंने उसका कर्जा चुका दिया, अब उसको एक बहुत अच्छी गाड़ी दे दी और बोल दिया अब तू गाड़ी का पेट्रोल भरेगा, मेंटेनेंस भी देगा। हो गया है? This ये is क्या हो गया? as if a beggar had a lot of debt and I paid all the debt and I gave him a car and told him to pay the fuel and do everything. तो परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे अच्छे कर्म फटे पुराने चिथड़े, उद्धार कर्मों से नहीं, परमेश्वर का दान है। और अब आप आगे, अब आखिरी में परमेश्वर तुम्हारे कर्म देखेगा, अगर कर्म सही नहीं तो तुम्हें ठुकरा देगा। So the gospel was preached saying your works are like filthy rags before God, and then you receive Christ and now you're told at the end God will look at your works. If your works are not good, God will reject you. इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिक गॉस्पेल। This is called schizophrenic gospel. या गजनी देखी थी आपने? गजनी, भुलक्कड़पन का सुसमाचार। कि परमेश्वर कह के भूल गया God said it and then forgot. कि यीशु पृथ्वी पर आता है और कहता है मैं पापियों का मित्र हूं, Jesus comes to the earth and says, I'm a friend of sinners. और फिर वो स्वर्ग उठा लिया जाता Then है। he's taken up in वो heaven. कहता है पापी, He says, sinner, आग फेंको इनमें, आग। throw them in the fire. My Jesus, मेरा यीशु, your Jesus, आपका यीशु, my Lord मेरा प्रभु and your Lord और आपका is प्रभु the same वो वैसा ही है, yesterday, कल, today आज and forever. और युगान He युग। never changes. वो कभी नहीं बदलता। Hallelujah. हालेलुया। That's why gospel is so precious. इसीलिए सुसमाचार इतना कीमती है। मैंने जूडा के हाथ में कुछ दिया, उसने खो दिया। I gave something in the hand of Judah and he lost it. अब मैं और कोई इतनी कीमती चीज लूं और फिर उसके हाथ में डाल दूं और बोलूं क्यों खोई तूने? अब मैं कहूं मैं तुझे दंड दूंगा क्योंकि तूने खोली। अरे उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको रखने की। And if I buy something way more expensive, way more precious than that and give it to him again and he loses it, I'll be like, why did you lose it? Now I'll punish you. अगर Because he doesn't have इंसान capacity. ही उद्धार को बचा के रख सकता, If man was capable of preserving salvation, that's why I told you, इसीलिए मैंने आपसे कहा, your righteousness now अब आपकी धार्मिकता is as eternal as Jesus' standing before the Father. आपकी जो धार्मिकता है, आपकी जो उद्धार है, वो उतना ही अनंत तक का है जितना अनंत तक का यीशु का पिता के सामने खड़ा होना। मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं,
क्या पिता कभी यीशु मसीह को देखकर कह सकता है तू कौन है, मैं तुझे कभी नहीं जानता? I'll ask you a question. Can the Father ever look at Jesus and say, "Who are you? I never knew you"? पक्की बात? For sure. तो हमने किसको पहना है? Who are we wearing? तो क्या पिता कभी आपको देखकर कह सकता है? Then can the Father ever look at you and say, अगर अब हमारा यूनियन हो गया है, "If now we are one, अगर अब हम एक हो गए हैं, if we are one, ओके, और किसने किया हमें एक? who made us one? किसने किया? किसने किया? परमेश्वर ने किया। God made us one. तो जब परमेश्वर ने एक कर दिया, When God made us one, तो परमेश्वर क्या आपको देखकर कभी अब कह सकता है तू कौन है, मैं तुझे कभी then can God ever look at you and say, "Who are you? I never knew you"? नहीं। याद रखना ये दृष्टांत, Always remember this parable. क्योंकि परमेश्वर क्या दिख रहा है? माय सन, माय सन, माय Because सन। God is looking at मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा. ओके, दैट्स व्हाई जीसस सेड, इसलिए यीशु ने कहा, आस्क द फादर एनीथिंग इन माय नेम, मेरे नाम से जो तुम पिता से, यानी मेरी जगह में खड़ा होकर मेरे अधिकार से जो अब तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। So he was saying, when you stand in my place and ask with my authority, the Father will do it for you. Amen. Hallelujah. Because Jesus has given you his placement क्योंकि as a son. यीशु ने आपको अपना स्थान दे दिया बेटा होने का. ठीक है, कई लोगों को मैं देख रहा हूं ऐसा करें, Some people are trying to हल्के figure it हल्के out. सुसमाचार समझ में आएगा। Slowly you will आपने understand. बहुत साल तक मनुष्यों के कर्मों का सुसमाचार सुना है। You've heard the news of man's works for many years. आएगा, It'll come. और जब सुसमाचार समझ में आएगा, And when you will understand the gospel, करुणा और भलाई, goodness and mercy, करुणा और भलाई goodness and mercy, जीवन के हर क्षेत्र में in every area of life, आपका पीछा करने लग जाएगी। they will pursue you in every area of your life. आप समझ जाओगे You will understand कि ये मेरे बारे में नहीं that है, this is not about me. ये तो मसीह की जो जगह थी उसने मुझे सेंत मेत में एक दान के रूप में दे दिया। मैं अब किस चीज में घमंड करूं? This was the place of Christ that He gave freely to me. Now what can I boast about? एक ही चीज में घमंड कर सकते हो आप, Only one thing you can boast about. एक ही चीज में, The कि only मैं one. मसीह का हूं। That I belong to Christ. ना अपनी प्रार्थनाओं में, Neither your ना prayers, अपने उपवासों में, nor your ना fasting, कितना आप देते हो परमेश्वर how के much you राज्य give in the में, kingdom, आपने क्या किया, what you आप did. इस पे घमंड नहीं कर सकता कोई। You cannot boast in this anymore. मगर जो धार्मिक लोग हैं ना वो जल जाते हैं इससे। But the religious people, they hate. क्या कहना चाह रहे हो? What are you saying? मैंने जो अपने घुटने छिल दिए, My knees were wounded. अरे हमारे घुटने नहीं, जो वो छिल गया क्रूस पर, Not our उसकी वजह knees. से। It's not our knees, it's Him who was He bruised. was wounded. वो घायल किया He गया. was wounded for our transgression. वो हमारे अपराधों He के लिए was घायल किया bruised गया. for our iniquities. हमारे धर्म के कामों The के कारण कुचला गया. chastisement for our peace was upon him. हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी. And by his stripes और उसके कोड़े खाने से we are healed. हम चंगे हो चुके हैं. That's the beauty of the gospel. ये खूबसूरती है सुसमाचार की. The more you will know gospel, the more you will love Jesus. जितना ज्यादा आप सुसमाचार को जानोगे उतना यीशु से प्यार करोगे. Amen. Otherwise सुई यहाँ रहेगी आपकी। Otherwise your मैं जब सुई compass will मसीह की always तरफ be हो focused जाएगी, here. But when your compass is focused on Him, it's a free gift. ओ ये तो फ्री गिफ्ट है. अन्यथा अगर धर्म में रहोगे तो आपके मैं If you will live in religion, तेरे you'll बस की say, नहीं है। "Oh, I did. You cannot do जब it." सुसमाचार समझोगे तुम आप दूसरे बोले मेरे बस की भी नहीं थी। When you understand the gospel, you'll tell the other, "Even I could not do it." किसी के बस, इब्राहिम के बस की नहीं थी, मूसा के बस की नहीं, किसी के बस की नहीं थी। Nobody was worthy. Nobody was इसीलिए capable enough. Not परमेश्वर भी Abraham, धर कर आ Moses. गया। That's why God became a उसने कहा man. तुम्हारे बस की नहीं है, मैं करूंगा तुम्हारे He लिए। said, "You can't do it. Let me do it for you."
This message won't give people the license to sin. It will empower people to overcome every sin. ये संदेश लोगों को पाप करने का लाइसेंस नहीं देगा, ये संदेश हर एक पाप की आदत पर जय पाने The की बल more देगा। you reckon your union with Christ, जितना आप मसीह के साथ अपने एक हो जाने को पहचानोगे, the more Christ will start to live through you. उतना मसीह आपके द्वारा जीने लग जाएगा। पहले मुझे समझ में नहीं आती थी ये चीज। Earlier I could not understand this. कितनी जगह जब हम जाते हैं और कितने, जैसे हम घर में गए किसी के या दूसरे कंट्री में गया, जगह अलग जगह, वो हमेशा बताते हैं, वो कह रहे जब हम सरमन सुन रहे होते हैं ना, तो हमारा बच्चा, हम उसे कहते हैं कि देखो ये अपोस्टल अंकित है, वो कहता है नहीं मम्मा ये जीसस प्रीच कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग ये बताने लग गए जब, तब मुझे समझ में बाद में ढक्कन खुला, यही तो सुसमाचार है। मैं अब मुझ में नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, यही तो सुसमाचार है। So many places when we go, they will say, you know, my child was saying, it's Jesus on the stage, not And it's not just Apostle me. Ankit. और सिर्फ मैं It's नहीं, you, and it's you, आपके and साथ it's भी, you, and आप it's भी, you. आप भी, That's आप the भी। gospel. We have been made one with Jesus. यही सुसमाचार है कि हम मसीह के साथ एक हो चुके हैं। Paul understood this. पौलुस ये समझ गया। Can you put Galatians 2:20? गलातिया 2:20। He says, I have been crucified with Christ. उसने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा It is चुका no हूँ। longer I who live. अब मैं नहीं जीवित रहता, It is Christ who lives लेकिन in me. मसीह मुझ में जीवित रहता है। And the life which I now live, और अब जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ, the life which I now live, जो जिंदगी अब मैं जी रहा I हूँ, live by the faith of the Son of God, मैं मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा जी रहा हूँ, who loved me, जिसने मुझसे प्रेम किया gave himself for me. और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Amen. Hallelujah. मैंने आपको बताया था कि प्रभु किसको ग्रहण करता है? I told you, whom does the Lord accept? पुत्र को। The Son. अगर आप बहुत सारे अच्छे कर्मों के साथ जाओगे बिना पुत्र के, तो क्या होगा? If you go to the Father with many good works except without the Son, what will happen? So what qualifies you? तो क्या योग्य ठहराता है आपको? What qualifies you? क्या योग्य बनाता The है? Son. पुत्र। For God so loved the world that he gave his. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा दे दिया। For God so loved the world that he told the world do good works so that I may accept क्या you. कि उनसे कहा कि अच्छे कर्म करो ताकि मैं तुम्हें ग्रहण कर लूं। ताकि जो कोई अच्छे कर्म ना करे वो नाश हो जाए. So that anyone who doesn't do good works perishes. Is the gospel of works. ये समाचार है कार्यों का, कर्मों का। Come on. Come on. But the true gospel says, लेकिन सच्चा सुसमाचार ये कहता for है, God so loved the world क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave his only begotten कि son. उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। Now hear this, सुनिए, that whosoever will believe in him, कि जो कोई उस पे विश्वास कर ले, there is no asterisk there, वहां पे कोई एस्ट्रिक सितारा नहीं बना हुआ, there is no conditions apply. शर्तें लागू नहीं है कोई। Whosoever will believe in him जो कोई उस पर विश्वास करे will not perish वो नाश नहीं होगा, but have eternal or everlasting life. परंतु अनंत जीवन का वारिस होगा, अनंत जीवन पाएगा। Hallelujah. So आपको अनंत जीवन का वारिस क्या बनाता है? What has made you the heir of eternal life? Believing in the Son. पुत्र पर विश्वास करना। और जो पुत्र पर विश्वास करता है वो बोलो नाश नहीं होता. And whoever believes in the Son कितने does लोग not पुत्र perish. पर विश्वास करते हैं यहाँ पर? How many here believe I in have the a good Son? news for you. मेरे पास अच्छी खबर है आपके लिए। आपके विश्वास ने आपको अविनाशी बना दिया है यीशु के नाम में. Your faith has made you everlasting, indestructible in Jesus' name. Hallelujah.
Because I believe in the Son of God, क्योंकि मैंने परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास I किया, will never perish. मैं कभी नाश नहीं होऊंगा, I will never perish. मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. मैन, That's the good news. ये अच्छी खबर है। Hallelujah. कुछ सीख रहे हैं? लर्निंग समथिंग। When you understand the gospel, जब आप सुसमाचार को समझते हो, everywhere you see, जहां भी देखोगे you फिर start seeing the Son. आपको पुत्र नजर आने लगेगा। That's the beauty of the gospel. ये खूबसूरती है सुसमाचार की। You see, the Bible says the God of this world has blinded the eyes of them who don't believe, even many believers who don't believe, so that they might not see the glorious gospel. They might not see the glory that is in the gospel. बाइबल कहती है इस जगत के ईश्वर ने, शैतान ने बहुत सारे लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, कई बिलीवर्स की भी आंखें अंधी कर दी है, ताकि वो उस महिमा से भरे सुसमाचार को ना देख सकें। All right. 1 John 5:11 to 12. पहला यूहन्ना कुछ 5। सीख रहे हैं हम कलीसिया? Okay. And this is the testimony और ये वो गवाही है that God will one day when we die give us eternal life. कि परमेश्वर एक दिन जब हम मर जाएंगे तो हमें अनंत जीवन देगा। अभी तो कट रही है कैसे भी करके, राइट नाउ वी आर समहाउ सर्वाइविंग, but one day लेकिन एक दिन जब हम नीले आसमां के पार जाएंगे, when we go beyond the blue skies, तब वो हमें अनंत जीवन देगा। then God will give us eternal life. ऐसा लिखा है आपकी बाइबल में? Is this written in your Bible? My Bible says मेरी बाइबल कहती है God has given us eternal life. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। What? क्या? दे दिया है? He has given it. Eternal life. अनंत जीवन, Zoe. जोई जीवन, God kind of life. परमेश्वर जैसा जीवन, The life that God himself has. वो जीवन जो परमेश्वर स्वयं जीता है। God has given us eternal life. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया। Ooh, are you ready? तैयार हो? And this life और ये जिंदगी is in his son. और ये जीवन उसके पुत्र में है। ये अनंत जीवन कहाँ है? Where is this eternal life? कहाँ है? पक्की बात? In the Son, for sure. 100%? अनंत जीवन कहाँ है? Where is eternal life? कहाँ है अनंत जीवन? Where is eternal life? Okay. Put Colossians 1:27. कोलोसी 1:27। कहाँ है अनंत जीवन? Where is eternal life? उसके पुत्र में। In अब his देखते हैं son. पुत्र क्या है। Now let's see what the Son is. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हम पर, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है। क्या है महिमा का मूल? वो महिमा ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है कहां रहता है? कहां रहता है? क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। वो मसीह जो आप में रहता है वो महिमा की आशा है। मसीह कहां है? Where is Christ? बोलो मुझ में। Say in me. मसीह कहां है? Where is Christ? और अनंत जीवन कहां है? Where is eternal life? मसीह में। In Christ. ओके, शुरू से शुरू। अनंत जीवन कहां है? Where is eternal मसीह life? में। In Christ. मसीह कहां है? Where is Christ? मुझ में। In me. तो अनंत जीवन कहां है? Where is eternal life? मुझ में। In me. अनंत जीवन मतलब वो जीवन जो परमेश्वर का है, वो नाश नहीं हो सकता। Eternal life is the life of God that cannot be destroyed. तो अगर तुम मसीह में हो So if और you are in मसीह Christ. तुम में है और अनंत जीवन मसीह में है, तो भैया क्यों डर रहे हो कि एक दिन नाश हो जाओगे? So if you are in Christ and Christ is in you and eternal life is in Christ, why are you afraid that you'll be destroyed one day? कभी भी बुलाया आए, No matter when you are called. बुलावा कभी भी आए, No matter when you are called. सर्वदा Forever. मैं
परमेश्वर के घर में वास करूंगा। I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. You will dwell in the house of the Lord forever. आप परमेश्वर के घर में सदा वास करेंगे। Amen. हम देखें आजकल घरों में बहुत सारे वो डोर बेल्स आ गए हैं जिसमें कैमरा है। There are many houses that have doorbells with cameras. तो बेल बजी ना ना, The bell rings. आपने देखा कौन है You कैमरा? saw who's there on the अरे camera. छे तो बेटा है, You say, oh son, लॉक खोल दो, you open the lock. बेटे को अंदर आने दो। The son can come in the house. स्वर्ग में बेल बजी टिरिरिरि। The एक bell और rang in आत्मा आई heaven. है। Another spirit देखा कौन है? saw, अरे ये तो बेटा है, oh this is my son. दरवाजा खोल दो, Let him come. आने दो। Amen. Amen. मगर कोई आया टर But somebody came, rang the bell, फटे पुराने चिथड़े पहने। wearing filthy rags. Oh, मैंने प्रभु जो तेरी सेवा करी पूरी जिंदगी। I served you God all my life. बोले देखा, पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है। I don't know who this guy is. Some weirdo. कपड़े भी मैले पहने हैं। Wearing filthy rags. इसकी वो एंट्री डिनाई करो, ये नहीं जाएगा। Don't let him in my house. He won't come. केवल पुत्र घर में सदा रहता है। Only the son abides in the house forever. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That's why Paul says इसीलिए पॉल कहते हैं to be absent from the body is to be present with the Lord. देह में अनुपस्थित होना परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। Maybe someday will, अगर प्रभु ने चाहा तो इसी सीरीज में हम आगे जाएंगे। Now, death का sting हटा देगा आपकी लाइफ से। The sting of death has been removed from your life. You will not even know when you will pass on आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप उस पार to जाएंगे your eternal home. अपने अनंत के घर में। कई लोग कहते हैं हाय हाय उसको कैसा लगा होगा एक्सीडेंट में, उसको तो लगा ही नहीं कुछ भी। Some people say, oh how he felt, he felt nothing. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उसको कुछ नहीं लगा, He felt nothing. उसको यीशु लगा। He felt Jesus. So let you have no more fear of death. तो अब और मृत्यु का भय ना हो आपके अंदर। The sting of death has been removed from your life. मृत्यु का डंक आपके जीवन से हटा दिया गया है। Amen. Amen. हालांकि हम कह रहे हैं कि बुलावा कभी भी आए, Even though we are saying no matter when you're called, बट जल्दी नहीं जाने देंगे आप। but we will not let you go early. जब तक अपनी रेस पूरी नहीं कर लोगे, Until you have finished your जब race तक जिस completely. उद्देश्य के साथ, जिस काम के साथ पिता ने आपको यहाँ भेजा है, जब उस तक उसको पूरा नहीं कर लोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। Until you have finished the assignment, the purpose that the Father has sent you with, you are not allowed to go anywhere. You're not going anywhere. तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे निकट ना आएगा। 1,000 will fall by your side, 10,000 by your right hand, but it will not come near जितने you. भी हथियार तेरी हानि के विरोध में रचे जाते हैं, एक भी सफल ना होगा यीशु के नाम में। Out of all the weapons that are forged against you, not even one of those weapons will ever prosper in Jesus' name. हालेलुया। Okay, you can be seated. अगर यीशु मसीह हमारा टिकट होता स्वर्ग का टिकट, If Jesus was our ticket to heaven, तो टिकट खो सकता है, we could have lost the ticket. मगर जब वो मेरे साथ एक हो गया, But He has become one with me. जब मेरा जन्म उससे हो गया, When I was born अब from कैसे Him, खोओगे इसे? how can you now lose Him? इस बात को समझो। Understand one thing. आपके घर पे मतलब उधार बेकार है, मगर क्या करूं? The example is bad, but यही समझ में आ रहा है मुझे अभी। सोचो आपके घर में पाइप खराब हो गया, पाइप लीक कर रहा है, imagine a pipe is leaking in your house. और फिर एक दुनिया का बेस्ट प्लम्बर आपके घर में आया, बेस्ट, And then the best plumber of the world came to your house. बोला मुझे अमेरिका से भेजा गया आपके घर में। He was sent from America to your house.
और ठीक करा उसने, He fixed it. और फिर 10 दिन बाद फिर। And 10 days later, again the pipe अच्छा is प्लम्बर था, leaking. अनाड़ी प्लम्बर था। Was he a good plumber or a novice? तो परमेश्वर ने आदम में आदम को बनाया, So God made Adam in the Garden of Eden पाप में आदम को खो दिया, and lost Adam in sin. फिर अपने पुत्र को भेजा, Then he sent his son, इतना बड़ा बलिदान दिया उसने, अपना लहू बहाया, gave such a great sacrifice of his own blood. और फिर And then कितने सारे मसीहों को वो खो देगा। he loses so many believers again. Then God isn't a very good savior, is he? तो फिर परमेश्वर ज्यादा अच्छा उद्धार करता है He नहीं, keeps losing people. वो खोते रहता है लोगों को। No. नहीं, यीशु ने कहा, Jesus said, जितने पिता ने मुझे दिए हैं मैंने एक को भी नहीं खोऊंगा। He says, as many as the Father has given to me, I will not even lose one. Hallelujah! No one can snatch you out of my hand, Jesus said. यीशु ने कहा, कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है। कोई नहीं छीन सकता, No one can snatch you. कोई तुम्हें मेरे हाथों से नहीं छीन सकता। No one can snatch you from my hand. Because people do not understand gospel, क्योंकि gospel नहीं समझते, क्योंकि अभी भी कर्मों की gospel है, इसलिए they don't understand it. Because people don't understand the gospel because it's still the news of works. So they think Adam lost it, we can lose it, उनको लगता है आदम ने गवा दिया था तो हम भी गवा सकते हैं जी, because they don't understand salvation. क्योंकि वो उद्धार को समझते मैंने नहीं आपको हैं। पहले बोला था बार बार, there are some things which has to be repeated enough so that it becomes your belief system. कुछ बातों को दोहरा जाने की आवश्यकता है कि आपकी विचारधारा बन जाए। मगर शैतान क्या करता है, समझो इस बात और को। what the devil does, This constant whisper where he tells you God is going to reject you. ये लगातार जो आपसे बोलता है कि परमेश्वर तुम्हें ठुकरा देगा। Why? क्यों? Because by nature he is the accuser of brethren. क्योंकि स्वभाव से ही वो भाइयों पर दोष लगाने वाला कहलाया है। क्या करता है वो, दिन रात दोष लगाता है। He condemns day and night. यीशु अगर आज आ गया तो तुझे नहीं ले जाएगा। If Jesus comes today, he will not take you. आपको क्या करना है? Now what do you have to do? Just laugh it off. Learn to laugh at devil. शैतान पे हंसना सीखो। हंसो, जब सुसमाचार समझ जाओगे तो हंसोगे उसकी बात। When you will understand the gospel, you will बोले laugh it off. शैतान तू मूर्ख है, मूर्ख। Say, devil, you're a fool. Amen. अरे मसीह जो आ रहा है मेरे अंदर ही तो रहता है वो। Oh, the Christ that is coming, he lives I inside am me. the body of his body. मैं उसकी देह में से देह हूँ। I am one with him. मैं उसके साथ एक हूँ। उसने कहा, जितने पिता मुझे देता है मैं उन्हें किसी रीति से ना निकालूंगा। अरे भैया, He says, as many as the Father gives to me, I will by no means cast them out. अरे वो पॉलिटिशियन नहीं कि वादे देके मुकर जाएगा। He is not a politician that he would promise and then forget about it. अरे वो परमेश्वर है। He उसने is कहा, मैं God. मनुष्य नहीं, मैं झूठ बोलूं। He says, I'm not a man अगर that I उसने would कहा lie. जितने मेरे पास आते हैं मैं उन्हें किसी रीति से ना निकालूंगा, तो इसका मतलब नहीं निकालेगा। He says, as many as come to me, I will not cast even one out. That और means he अगर आप will not. मसीह के साथ एक हो गए हो If you are one with Christ, तो कैसे निकाले? उसको भी निकलना पड़ेगा फिर आपके साथ। how will he take you out? How will he cast you out? He has to चलो cast निकल, Christ चलो out. प्रभु साथ में Go निकलते out. हैं। Lord, let's go out. Amen? Amen. अगर हम मसीह के साथ एक हो गए हैं, If we are one with Christ, Amen? मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था कि ये यूनियन कितना पावरफुल है। I told you last Sunday how powerful this union is. कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है, That Paul tells the Corinthian church, जहां आप जाते हो मसीह आपके साथ। where you go, Christ goes with you. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आर वी लर्निंग समथिंग इन दिस सीरीज? आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। The way you pray will change. दिक्कत ये है ना, बहुत सारे मसीह क्रूस की गलत तरफ खड़े हैं। The problem is many people are standing on the wrong side of the cross. अब इसका क्या मतलब है? What does that mean? इसका मतलब है क्रूस से पहले खड़े हैं। That means they are standing before the cross. उनकी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जैसे क्रूस और पुनरुत्थान हुआ ही नहीं। Their prayers still are like cross and resurrection never happened. वो मूसा बनना चाहते हैं।
They want to be like Moses. तो प्रार्थना करते हैं, They pray, प्रभु जी, oh Lord, हो oh, हो प्रभु जी, oh Lord, अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ न जाए प्रभु, Lord, if your presence doesn't go with me, तो मुझे मत भेज। then don't send me. और सारे स्वर्गदूत स्वर में कर रहे हैं, And all the angels are banging their foreheads क्योंकि मूसा को पढ़ा है। because they've read Moses. अरे मूसा के पास वो प्रिविलेज नहीं थी जो आपकी और मेरे पास है। Oh, Moses did not have the privilege that you and I have. मूसा पढ़ रहे हो, मगर मूसा के साथ क्या हुआ वो भी पढ़ लो। एक गलती में अंदर नहीं प्रवेश कर पाया फिर वो। You're reading about Moses, then बनना है also read मूसा? what happened. अब बताओ कितने मूसा बनोगे? Also read what happened to him. One mistake and he could not कितनी enter. गलती? प्रभु ने अब तू वाचा के देश में प्रवेश। One mistake and God said, now you will not enter the land of promise. मगर जब यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया, But when Jesus gave the example of the prodigal son, एक क्या पता नहीं कितनी गलतियां करी थी उसने। not one, he would have done many. मगर many जब वो वापस mistakes. आया, But when he came back, जब घर में था, when he was in the house, पिता का बेस्ट उसके लिए था। he had the best of the Father for him. जब वापस आया, When he came back, तो पिता ने कहा बेस्ट रोब दो इसे। the Father said, give him the best robe. इसीलिए आयुब आयुब करते हैं। People still talk about Job. जोब ब्रदर, व्हाई डिड इट हैपन विद जोब? Oh, अय्यूब के साथ ऐसा क्यों हुआ? ब्रदर जोब, ओ भाई अय्यूब के साथ ऐसा गेट अ जोब। आप मसीही हो या याकूबी हो? नहीं, क्या जोब, क्या अयूबी? मसीही या अयूबी? Do you belong to Christ or to Job? Job was not given the authority that the new creation has been given. अरे अय्यूब के पास वो अधिकार नहीं था जो नई सृष्टि को दिया गया है। Job lived before the blood was shed, before Jesus went on the cross, before Jesus was resurrected. अय्यूब जिंदा था लहू के बहाए जाने से पहले, क्रूस से पहले, यीशु के पुनरुत्थान से पहले। Job had no authority over Satan. अय्यूब के पास कोई अधिकार नहीं था शैतान के ऊपर। Today you and me have been given authority over Satan. आज आपको और मुझे अधिकार दिया गया है शैतान के ऊपर। यहां कितने लोग हैं जिनके घर में गैस है, गैस स्टोव, गैस, आप खाना बनाते हैं, मगर 200 साल पहले तो वो लकड़ी जलाते थे। 200 years ago they were still burning wood to make food. वो क्यों नहीं स्टोव चलाते थे? वो क्यों नहीं गैस चलाते थे? Why didn't they use gas stoves? अरे जब था ही नहीं उनके पास तो कैसे चलाते? They did not have it. How could they मगर have used आपके it? पास तो है। But you have it. अरे आयुब के पास नहीं था। Job did not have it. आयुब के पास वो अधिकार नहीं दिया गया था। Job did not अरे have the आपको तो दिया authority. गया है। But you have received authority. लूका 10:19 लगाओ। बट ब्रदर आयुब, ब्रदर जो, Oh, Ayub. देखो, पड़ोसी को बोलो देखो, क्योंकि कई लोग देखते नहीं। देखो का मतलब पता है क्या यहाँ पे? इसका मतलब है परसीव दिस रियलिटी, अंडरस्टैंड दिस इस रियलिटी। हकीकत को जान लो। देखो, Behold, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे लोगों, Jesus is saying, मेरे my people, परिवार, my family, देखो, behold, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions
and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. कहीं अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा आपने, परमेश्वर ने उसको ये दी थी आयत. Did you read in the book of Job that God gave Job authority? So he could do nothing about Satan. तो वो शैतान का कुछ नहीं कर सकता था. But you can do something about Satan. लेकिन आप कर सकते हो शैतान का. Because you are not without authority. क्योंकि आप बिना अधिकार के नहीं हो. यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे. Jesus said, in my name you will cast out demons. Put James 4:7. याकूब अच्छा, 4:7. याकूब के पास कौन आया? याकूब सॉरी, अय्यूब के पास कौन आया? कौन आया? तो कुछ नहीं कर पाया, है ना? अय्यूब के पास शैतान आया तो अय्यूब कुछ कर पाया? मगर परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है? जब आपके पास शैतान आए तो आपको कुछ करना है. The devil came to Job and Job could not do anything about him, but God tells you to do something about the devil. इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से क्या करेगा? हालेलुया. Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. अय्यूब के पास थी ये प्रतिज्ञा. Did Job had this promise? शैतान आया था ना उसके पास. The devil came to him. आपके पास भी अगर आता है तो प्रभु क्या करेगा? अंत में क्या होगा अगर वो आपके पास आता है और आप वो करोगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, तो क्या करेगा शैतान? क्या करेगा? But if the devil comes to you and you do what God has told you to do, the devil will flee from you. मगर क्या करेगा वो? क्योंकि झूठ का पिता आपके पास आया. Because he's the father of lies, he will come to you and say, अरे ये परमेश्वर ने भेजा है तेरे पे. oh no, God has sent this for you. अय्यूब के साथ भी तो भेजा था. It happened to Job also. और आप अपने हथियार नहीं जाओ. And you will put down your weapon and say, oh yeah. प्रभु. Oh Lord. Because he doesn't want you वो नहीं चाहता to walk in authority. कि आप अधिकार में चलो. वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा. He will flee from you. भाग जाएगा. Flee from you. There is first Adam. पहला आदम. There is last Adam. आखिरी आदम. Okay. All the religions come in. सारे धर्म कहाँ आते हैं? First Adam. पहले आदम में. Then last Adam is Jesus. फिर आखिरी आदम यीशु है. Then the third kind of race is new creation. फिर एक तीसरी तरह की प्रजाति है नई सृष्टि. You have to understand, learn how new creation talks, how new creation prays, how new creation lives. Oh, it's a glorious life in Christ. आपको समझना है और सीखना है कि ये नई सृष्टि कैसे बात करती है, कैसे जीती है. ये महिमा से भरा हुआ जीवन है. Amen. फिर से 1 John 5:12 में चलते हैं. पहला यूहन्ना 5 उसका 12. Hallelujah. Amen. Are you happy? किसी ने मुझे पूछा अब हम क्या करें जो फॉर्म आता है जिसमें रिलीजन भरने का होता है. Somebody asked me what to do with the form when there's a religion block. मैंने वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि न्यू क्रिएशन का ऑप्शन नहीं है उसमें. I said even I don't know because there is no option for new creation. Okay. Alright. जिसके पास पुत्र है उसके पास He who has the son has life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है. जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं. He who does not have the Son of God does not have life. Hallelujah. Now all that you have to do is renew your mind, reprogram your mind according to the revelation of what Jesus Christ has already done for us. अब आपको ये करना है, अपने मन को नया करना है, अपने मन को दोबारा से प्रोग्राम करना है उस हकीकत के अनुसार जो मसीह यीशु ने नई सृष्टि के साथ कर दी है.
जब हम नहीं समझेंगे जो प्रभु कह रहा है कई बारी, तो हम क्या करेंगे? दृष्टांतों का गलत मतलब निकालेंगे. When we don't understand what the Lord is saying, we will misunderstand these parables that Jesus said. यीशु ने कहा अगर तेरी आंख तुझसे पाप कराती तो क्या कर? आंख को क्या कर? Jesus said, if your eye makes you sin, pull it, blot it out. Pull it अगर out. तेरा हाथ तेरे से पाप कराए तो क्या कर? If your hand makes you sin, cut it अगर off. पांव पाप कराए तो? If your foot makes you sin, cut it off. एक आज तक मुझे नहीं मिला जिसने यीशु की इस बात का पालन किया हो. I have not met one believer that has obeyed this commandment of Jesus. कई जो प्रचार भी कर रहे हैं ये, Many are preaching मैंने खुद ही this. मान लो एक बारी. Many people are preaching this, but I say, why don't you obey first? तो फिर अगले संडे आपको बंदा मिलेगा बिना आंख का, Then next Sunday you will meet them without फिर eyes. उसके अगले संडे मिलेगा बिना हाथ का, Then the Sunday after that without hand. फिर टांग किसी और को बोल के कटवानी पड़ेगी क्योंकि हाथ तो काट दिया उसने.